A very good afternoon, dear students, dear learners, dear friends, and dear followers. Again, I came back on Dialect English lectures to welcome to all of you. And now in today's video, we will discuss about the topic or the main part or another main part of the play The Merchant of Venice, penned by William Shakespeare. Dear students, as we know, in previous videos we have mentioned about the Bond story or another things of the concerning play The Merchant of Venice, and this video is the most important part also of the play. So listen it very carefully, and those who didn't subscribe till now the channel, please subscribe it and share it more and more. प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों और प्रिय साथियों, सुनने वालों और चाहने वालों, आप सभी को मैं सादर प्रणाम पेश करता हूं, नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर। आज जिस वीडियो में हम और आप बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है कास्केट एपिसोड या कास्केट स्टोरी। कास्केट का जो सिलेक्शन था द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में, वो कास्केट स्टोरी सिलेक्शन है क्या, वाई दिस हैपेंड एंड हाउ दिस हैपेंड, व्हाट वाज दैट, क्या था ये, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले जो सब्जेक्टिव वीडियोज़ हैं उससे आप जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं, आपको दे सकता हूं, उसे अर्जित करें और अपने मित्रों में और सहपाठियों में इसको आपके माध्यम से ज़्यादा पहुंचाने की कृपा और कष्ट करें, यह आपसे अनुरोध है। तो आइए बात करते हैं एक नए एपिसोड के बारे में, जिस एपिसोड का नाम है कास्केट एपिसोड। एज वी नो दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज a very well known play of the world penned by William Shakespeare, and this episode, which we called a casket episode or story, is another important or very valuable part of the play or drama. Dear students, this casket episode happened when Portia's father made a will or testament before his death. He made a will that those who want to marry Portia will have to select the right casket, and those who will select the right casket will win marry Portia's hand as his wife. Portia's father made a will that the three caskets would be presented before each and every suitor who will come to win Portia's hand to marry her. In one casket there was a portrait or a picture of Portia. Who will select that casket in which Portia's picture or portrait will be found? Who will be able to marry Portia? And those who will select or choose the wrong casket, they could not marry even to Portia, but the other condition was that they could not marry to another woman in their complete life or whole life. It was mentioned in the testament or will. As many suitors heard the second condition of the testament or will, they went away
without trying their luck, because the second condition didn't suit them. But Prince of Morocco and Prince of Aragon and at last Bassanio appeared in the Belmont Palace to try their luck to get married to Portia. There was three caskets: a golden casket or a gold casket, a silver casket, and a lead casket. In each and every one, there was an inscription outside of the casket, and this inscription made an appeal to each and everyone who will choose it or who will select it. On the golden casket, it was mentioned on it, "Who will choose me shall gain what many men desire." This was the statement which was mentioned on the golden casket. It means all that glitters is not gold and the outward seeming appearance is false. But Prince, on the next or silver casket, it was mentioned, "Who chose me shall gain as much as he deserved." It means the common things for everyone, for whom the things or the material power which he wants as a common material. On the lead casket, it was mentioned that who chooses me or will select me will have to sacrifice what he has or had. As we know that Prince of Morocco selected a golden casket, and in it he found a letter. There was some little words in it, and he was defeated by himself, having selected the casket, because he had selected the wrong casket. And now he was out of turn, and he went away with empty handed from the palace of Belmont or Portia's palace. At last, or at second turn, Prince of Aragon appeared in the court to try his luck, and having read all the statements of the casket, he selected the silver casket, and he defeated in winning Portia's hand as his wife, and he also went away with empty handed from there. At last, Bassanio appeared in the Belmont in Portia's palace to try his luck. When Bassanio appeared in the room where all three caskets were put or kept on its proper place, Bassanio read the inscriptions on it very deeply by heart,
and having tried to understand the meaning of each and every inscription, as on the silver casket it was mentioned that who chose me must give and hazard all he hath, and at last Bassanio decided to leave everything what he had in his life to get Portia, or to win Portia's hand as his wife. Now at last Bassanio selected the lead casket, and by chance or by luck Bassanio won Portia's hand as his wife, because as he opened the lead casket he found a portrait of Portia in it. He expressed his loving desire or feelings towards Portia, having found the portrait of Portia in the lead casket or box, and Portia also expressed her desire towards Bassanio. Now, all these things showed here that these caskets selection of the play The Merchant of Venice is another episode or part of the play, and it is very important because of its philosophical statements or inscription of the casket. And the other important thing is that Portia's and Bassanio's fate depended on it. Now, many suitors, and we have narrated before that they came to try their luck to get married to win Portia's hand as his wife, but as he heard the second condition of the testament or will, they went away from there without trying their luck. But Bassanio, Prince of Aragon, Prince of Morocco, tried it, and at last Bassanio gets success or got success. प्रिय छात्रों और प्रिय मित्रों, बात हो रही है कास्केट सिलेक्शन की, कास्केट एपिसोड की, कास्केट की वो घटना जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में घटित होती है। आइए जानते हैं कि कास्केट सिलेक्शन था क्या, ये घटना है क्या, और ये कैसे घटित होती है, और इसके पीछे की वजह क्या थी। जैसा कि हम सभी लोगों ने अक्सर ये सुना है कि स्वयंवर प्रथा हुआ करती थी, वैसे ही एक प्रकार की ये प्रथा थी, एक प्रकार का ये टेस्टामेंट था, विल थी, इच्छा पत्र था, वसीयत थी पोर्शिया के पिता की, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले बनाई थी। पोर्शिया के पिता ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति पोर्शिया से विवाह करे, या जिस व्यक्ति का भी पोर्शिया से विवाह हो, वो 3 कास्केट में से किसी एक कास्केट का सही चुनाव करे, और एक कास्केट वो सही होगा कौन सा, जिस कास्केट में पोर्शिया की तस्वीर मिलेगी, और जो व्यक्ति उस सही कास्केट का चुनाव करेगा उस व्यक्ति से पोर्शिया की शादी की जाएगी, यानी वो व्यक्ति पोर्शिया को अपनी पत्नी बनाने का हकदार होगा, योग्य होगा। अब बात ये आ रही थी कि वहां पर मौजूद 3 कास्केट थे, और वो तीनों कास्केट, एक जो कि गोल्डन कास्केट था, गोल्ड कास्केट था, दूसरा सिल्वर कास्केट था, और तीसरा लेड कास्केट था। प्रत्येक कास्केट के ऊपर एक पेपर जो है वो पेस्ट किया गया था, और उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन यानी कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए थे, और उनका अपना एक शाब्दिक अर्थ था। जैसा कि गोल्डन कास्केट था, उसके ऊपर ये लिखा था कि जो मेरा चुनाव करेगा, जो तमाम लोग चाहते हैं वही उसकी इच्छा होगी। प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, उनको ये लगता है क्योंकि सभी लोगों की इच्छा जो यहाँ प्रस्तुत है पोर्शिया से विवाह करने की है, इसलिए इसी के अंदर पोर्शिया की तस्वीर होनी चाहिए, और एक राजकुमारी की तस्वीर जाहिर सी बात है सोने के बॉक्स में ही होगी, इसलिए वो गोल्डन कास्केट का सिलेक्शन कर लेते हैं और हार जाते हैं।
लेकिन गोल्डन कास्केट का सिलेक्शन करने के बाद वो हार कर वहां से चले जाते हैं खाली हाथ। उसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं। अपने टर्न पर, अपनी बारी पर वो उस रूम के अंदर, कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं जहां पर तमाम कास्केट रखे हुए थे तीनों। वो भी इंस्क्रिप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और वो सिल्वर कास्केट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि इस पर लिखा था कि जो इसका चुनाव करेगा उसको वही मिलेगा वो जिसके लायक है, यानी उसको जिस चीज जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को को एरेगन को ये लगता है कि चूंकि वो इस लायक हैं कि पोर्शिया उनको मिलनी चाहिए, और वो सिल्वर कास्केट का सिलेक्शन यानी चुनाव कर लेते हैं। लेकिन अंत में वो भी इस चुनाव में हार जाते हैं और प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं और अपने खाली हाथ वापस चले जाते हैं। अंत में बेसेनियो का प्रवेश होता है पोर्शिया के महल में। बेसेनियो आते हैं। जब बेसेनियो का नंबर आता है कास्केट सिलेक्शन का, तो बेसेनियो अपेयर होते हैं और उसके बाद बेसेनियो तमाम इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं गोल्डन, सिल्वर और लेड कास्केट पर, उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद वो लेड कास्केट के चुनाव का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि उस लेड कास्केट पर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि जो व्यक्ति इस चीज का इसका चुनाव करेगा उसके पास यदि इसको पाने के लिए जो कुछ है वो सब कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है, त्यागना भी पड़ सकता है। तो बेसेनियो को ये लगता है कि शायद वो पोर्शिया को पाने के लिए संसार की सारी चीज छोड़ सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। वो सब कुछ त्यागने को तैयार भी हैं और अंत में बेसेनियो लेड कास्केट का चुनाव सिलेक्शन कर लेते हैं। और भाग्यवश ये उनके किस्मत की बात थी कि बेसेनियो लेड कास्केट का चुनाव करते हैं और इस चुनाव में जीत जाते हैं। और वो जैसे ही इस पोर्ट्रेट कास्केट को खोलते हैं, इसके अंदर वो पोर्शिया की तस्वीर पा लेते हैं। खुशी के मारे वो अपने प्यार का पोर्शिया के सामने इजहार करते हैं। पोर्शिया भी अपने प्रेम का इजहार बेसेनियो से करती है और इस प्रकार बेसेनियो पोर्शिया से शादी करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस टेस्टामेंट, ये जो विल था पोर्शिया के फादर का, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था, इसकी एक वसीयत और भी थी। उस वसीयत में ये अंकित था कि जो लोग इस कास्केट सिलेक्शन में गलत कास्केट का चुनाव करेंगे वो पोर्शिया से तो शादी कर ही नहीं सकते हैं, इसके साथ साथ वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर किसी दूसरी कन्या से भी विवाह नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे राजकुमारों ने जब दूसरी कंडीशन, शर्त को सुना तो वो बगैर अपनी किस्मत को आजमाए वहां से चले गए, क्योंकि उनको दूसरी किस्मत थोड़ी सी आश्चर्यमय लग रही थी, अजीबो गरीब लग रही थी और वो मानने योग्य उन्हें नहीं लग रही थी। और इस प्रकार से केवल वहां पर प्रिंस ऑफ एरेगन, प्रिंस ऑफ मोरक्को और अंत में बेसेनियो ही बचते हैं जो कास्केट का चुनाव करते हैं। और इस प्रकार बेसेनियो पोर्शिया से विवाह करने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और उन दोनों का विवाह संपन्न होने के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। विवाह के पश्चात और विवाह से पहले पोर्शिया जो है बेसेनियो को एक रिंग पहना देती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिंग एपिसोड की। रिंग एपिसोड क्या था और ये घटना कैसे घटती है और इस घटना के पीछे के तथ्य क्या है, कहानी क्या है, उस पर हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे रिंग एपिसोड के नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन बात यहाँ हो रही थी कि कास्केट एपिसोड को इस प्रकार से बेसेनियो चूंकि जीत जाते हैं, सफल होते हैं और ये पता चलता है अंत में कि वास्तव में जो कास्केट एपिसोड था ये एक प्रमुख घटना है इस पूरे प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की, क्योंकि ये जो कास्केट एपिसोड की घटना है उस पर, क्योंकि पूरा ये निर्भर करता था, पोर्शिया की और बेसेनियो की किस्मत निर्भर थी इस कास्केट के चुनाव पर। यदि बेसेनियो खुदा न खास्ता दुर्भाग्यवश यदि गलत कास्केट का चुनाव कर लेते तो इस प्रतियोगिता से, जैसे कि प्रिंस ऑफ एरेगन और प्रिंस ऑफ मोरक्को बाहर हुए थे, वो भी हो सकते थे। फिर कहानी का अंत क्या होता, वो सारी चीजें अलग की हैं, वो बातें बात की हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो उस पर विचार और विमर्श करना व्यर्थ है, समय की बर्बादी है, इसलिए उस पर विचार और विमर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कास्केट का चुनाव क्योंकि पोर्शिया और बेसेनियो के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, एक महत्वपूर्ण अंश था, एक भाग था, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है कास्केट सिलेक्शन और एपिसोड ने।
और इस प्रकार से कास्केट सिलेक्शन और एपिसोड की ये जो घटना है वो पूर्ण होती है।